So this was the first homework. Similar questions we did in capacitance. So this is parallel. These all three are in parallel to, sorry हाँ, नीचे फिर से ये यहाँ तक पैरेलल है. 3, 6 and 2 का कितना आएगा? 1 ohm. 1 by RP. Okay, did I write it? ठीक है, तो 3, 6 and 2 are in parallel. Net rest, if you take LCM and solve it, 1 ohm will come. Then you see this will come 1 ohm and R is in series, or RAB is given. RAB is equal to ये R parallel जो है वो plus R parallel 1 निकला, RAB is 4, therefore R will be 3. ठीक है, so this is comparatively easy question. The circuit will be like this. Both are in series, added together is equal to 4 given. Then it will be 3, R will be 3. If a parallel combination has got 1, so R will be 3, 1 plus 3 will be 4. All right, no problem here. Okay, note down. 3 is the answer. Then ये वाला था. This is nothing but a Wheatstone bridge है ना. ये क्या है? Wheatstone bridge है, और दोनों तरफ एक एक R ohm रेजिस्टेंस है. This is Wheatstone bridge. सभी R है, इसका भी R आ जाएगा. ये R है और ये R है. तो A से B तक अगर हम बैटरी कनेक्ट करें, तो this R Wheatstone bridge का R और इसका R, all three are in series. This will be like this. ये कनेक्शन है A से, एक रॉड का R, ये Wheatstone bridge का R हो जाएगा पूरा. Then other rod is connected here. Other rod is connected like this. B. This is R. R plus R plus R. 3R. Clear? So Wheatstone bridge plus 2 more rods. Total will be 3R. All right. No doubt. This one was one more question. It was bridge, Wheatstone bridge folded inward. उसको outward fold किया, unfold किया, तो क्या होगा? In CD, calculate the current, calculate the ये वाला था ना, calculate the net resistance between AB. ये Wheatstone bridge है, ये निकल जाएगा R plus R 2R, सभी R है.
1 से लेकर 4 तक तो आर आंसर आ जाएगा. Current in the branch CD will be 0 because both will be equipotential points. No current will cross in the central dot, central resistance. तो ये 0 हो गया. और current in the branch ABC, ACB या A वाले ब्रांच में ये तो निकल जाएगा. तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 2R. तो R is 2, तो 4 हो गया. वोल्टेज कितना लगाया? 10. 10 by 4, that's 2.5 ampere. This is important question. ये 0 क्यों है बीच में? Since potential of C is equal to potential of D. पोटेंशियल इक्वल होते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता उसमें. ठीक है. ओके, नो डाउट. म्यूट करो किसका ऑडियो ऑन है. डन. This was the other question. Hint was given in this. So I told you find out the current in upper branch. इसमें suppose current I1 goes, तो I1 will be 12 upon upper branch का resistance कितना है? 6, 2 एम्पियर. और नीचे वाली ब्रांच I2 12 upon how much is the resistance? 9. तो ये आएगा 1.5 एम्पियर. तो अभी पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक. VA minus VC Ohm's law is equal to IR. I1 is 2, R is 2, 4 आ गया. नीचे वाली ब्रांच VA minus VD is equal to current is 1.5, resistance is 3, 4.5. Something has gone wrong. एक मिनट, यहाँ पे 1.3 1 पॉइंट यहाँ पे देखो क्या है, 4/3 4/3 रहने दो इसको. तो 4/3 into 3, तो ये 4. Now you add, subtract कर दो. This will be plus, ये हो जाएगा VD minus VC is equal to 4. ये 0 हो गया देखो यहाँ पर, तो 0 आ गया. Potential difference means they are at equal potential. VC and VD are at equal. Therefore, VC and VD are at equal potential. वैसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं. देखो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करके सोच लो, बैलेंस जैसा वीटी स्टोन ब्रिज दिख रहा है, बैलेंस वीटी स्टोन ब्रिज से मैंने ये निकाल दिया, बीच वाला रेजिस्टेंस निकाल दिया और तुम्हें क्वेश्चन दे दिया. तो कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा भी हम कॉमन सेंस भी लगा लें, रेशियो देख लें 2/3 और 4/6. पहले तो यही चेक कर लो, अगर रेशियो इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन सेम पोटेंशियल पे होंगे. इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ वीटी स्टोन, मतलब वीटी स्टोन ब्रिज का किसी ने R5 रिमूव करके तुम्हें क्वेश्चन दे दिया. बट इफ इट इज नॉट, रेशियो इज नॉट, यू हैव टू डू इट लाइक दिस. ऐसे ही करना है. इट इज नॉट कि हमेशा 0 है, बट जस्ट डेलिबरेटली आई गिव यू दिस क्वेश्चन to without, before solving, you just see carefully whether equal potential तो नहीं है, तो you can save your time if it is objective question. Clear? Yes sir.
Okay, then we'll move on to the next one. Let us see what is this. ये वाला है इसके बाद. Okay, ये देख लो, नोट कर लो. Just it is simple question. All right, इसके बाद हम लोग next question. Then we are going to see the next topic. Okay. तो देखो ये वाला रेगुलर क्वेश्चन है. देखो इसमें क्या करेंगे, पहले हमें क्या निकालना, करंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ आई निकालना है. तो या तो इसको ऐसा सोचो, पहले आर नेट निकाल लो. आरपी विल बी R1 into R2 डिवाइड बाय R1 plus R2. ठीक. अब ये सिंगल रेस्ट, अभी ऐसा हो जाएगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस है, करंट अप्रोचिंग इज आई, ये यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ये दोनों एंड्स का. ये सपोज ये ले लो, ये भी, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, वी मान लो इसको, ऐसा कर लो वी. देयरफॉर वी इज इक्वल टू आई इनटू आरपी. क्योंकि हम इसको सिंगल रेजिस्टेंस, इनकमिंग टोटल करंट इज आई, टोटल रेजिस्टेंस इज आरपी, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आई इंटू आरपी की वैल्यू पुट कर दो. ठीक है. नाउ यू गॉट द वी हियर. अभी तुम्हें वी मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ब्रांच इज सेम. तो अभी I1 फिर से निकाल सकते हैं. I1 इज इक्वल टू V बाई R1. अपर ब्रांच में रेजिस्टेंस R1 है, तो V की वैल्यू पुट कर देंगे, R1 चला जाएगा ये, तो R2 बचेगा. यहाँ पे देखो, ओके, I2 कितना आ जाएगा, इसमें I2 में R2 है, तो नीचे R2 आ जाएगा, R2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो R1 बचेगा. तो I अपॉन, ओके, R1 अपॉन R1 प्लस R2 ऑफ I. तो टोटल करंट यहाँ पे, नीचे टोटल रेजिस्टेंस है, जब I1 आ रहा है तो R2 आ रहा है इसमें, I2 में R1. इसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें ज्यादा करंट जाएगा. सपोज R2 इज मोर, तो R2 किस में आ रहा है, बाकी टर्म्स तो कॉमन नहीं, R2 I1 में आ रहा है. This, if you remember, you can just save your time in calculations of competitive examination questions. All right. We call it inverse ratio of resistance. I1 में R2 आ रहा है और I2 में R1 आ रहा है, बाकी टर्म सेम है. टोटल करंट आ रहा है ऊपर और नीचे टोटल रेजिस्टेंस. क्लियर? If you don't remember the formula, don't worry. Go back to basic and solve it always. एक और मेथड हो सकता है. देखो, टोटल करंट तुम्हें दिया, सपोज ये तुम्हें दे दिया 10 एम्पियर है, जो भी वैल्यू दी है, ऐसा भी तो हो सकता है. अभी वी नो द कॉमन पोटेंशियल इज कॉमन, V1 फ्रॉम द अपर ब्रांच इज इक्वल टू V2 फ्रॉम लोअर ब्रांच. कॉमन पोटेंशियल है दोनों का, कॉमन पॉइंट से, अपर एंड लोअर ब्रांच से. तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1, सॉरी, I1 R1, I2 R2. तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1. यहाँ भी देखो, अगर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा. इफ यू डिवाइड इट, तुम्हें R1 R2 को बहुत पता होगा. सपोज दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, तो 2/1 आ गया. और इन एक रेशियो ये मिल गया करंट का, I1 इज इक्वल टू 2I2 मिल गया, और दूसरा टोटल करंट I1 प्लस I2 विल बी I. तो
दो इक्वेशन मिल गई करंट की, यू कैन फाइंड आउट द करंट without finding this potential and all. So there are always more methods than one. You can just do it in any other method. ठीक है. ओके, यहाँ पर देखो, when we connect the battery here, जब बोला A and B के अक्रॉस निकलना, तो what I told you yesterday, ये जो लूज वायर्स है, लूज रेजिस्टेंस ये वाले, they will go. If they will go, so how the circuit will look like? ऐसा दिखेगा, फर्स्ट पार्ट में ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो नाउ दे आर इन सीरीज, ये वाले, तो 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? देखो नीचे फिर से डायग्राम बनाना. वन पार्ट का सोल्यूशन. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर है. ठीक है, तो 10 10 10, ये भी 10 है, दिस इज आल्सो 10, दिस इज आल्सो 10, ये आल्सो 10, दिस इज आल्सो 10. अभी कैसा दिख रहा है ये सर्किट? नाउ इट कैन बी सॉल्व. ये जो 10 है, तीनों ऊपर वाले, दे आर इन सीरीज, दे विल बिकम 30. वो 30 इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा. That 30 will be in parallel to this. ठीक है, इस 30 और 10 का निकाल लो पैरेलल का. ये 30 और 10, 10 into 30 upon 40, 30/4, 7.5. इसका 7.5 आ जाएगा. तो RAB 10 + 10 into 30 upon 40 plus 10. So 10 plus 7.5 plus 10, that's 27.5 ohm. ठीक है, फर्स्ट पार्ट का. ऐसे ही सब सेकंड पार्ट का कर सकते हैं. क्लियर टू एवरीवन दिस? Yes, sir. नोट कर लो इसको. सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये चला जाएगा ना. सॉरी, ये और ये हट जाएगा ना. अभी क्या होगा, ये 10 and 10. ओके, सेकंड पार्ट का सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है यहीं पे. क्विक आंसर, यू डोंट हैव टू यूज द पेन इवन. Sir, 30. 30. यस, तो ये देखो, ये दोनों 10, दिस 10 इन सीरीज 20 हो गया, ये 10 इन सीरीज 20 हो गया. कि आपस में 20 20 पैरेलल ऐसे आ जाएगा. फिर तो पैरेलल में 20 20 का 10 हो जाएगा, और तो ये 10 और ये 10 और ये 10 तीनों सीरीज में हो जाएंगे. तो फाइनल आंसर इज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, RAD is 30 ohm. ठीक है.
All right, moving on to the next topic. देख लो जल्दी से, quick इसका note कर लो. Then moving on to the next one. So, ठीक है. Now we are going to see the Kirchhoff's rule or Kirchhoff's laws. They are for complicated circuits. Complicated circuits हैं, तो हमें करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस कुछ निकालना है, तो ओम्स लॉ इज डिफिकल्ट टू यूज देयर. तो किरचॉफ गिव द टू लॉज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, two rules. First one is the junction rule, also called first rule or first law, also called current law, which is based on the conservation of charges. ये करंट के लिए है, ये जंक्शन रूल भी बोलते हैं उसको. It is for current, and since charges are there in the current, therefore it is also called the, it is based on the conservation of charges. जितने चार्जेस आएंगे यहाँ पर जंक्शन पर, और इन अदर वर्ड्स जितने करंट्स आएंगे जंक्शन पर, उतने करंट्स आउटवर्ड जाएंगे. टोटल करंट अप्रोचिंग टू द जंक्शन is total current leaving the junction. Let's see what is the NCERT book wording. At any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to sum of the currents leaving the junction. यहाँ पे कितने करंट अब इंटर हो रहा है? I3. लीव कितना हो रहा है? I1 plus I2. तो sum of the current approaching is equal to sum of the currents leaving. Very simple. जितना करंट आएगा उतना जाएगा जंक्शन पर. कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं होगा या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होगा कि चार्जेस पाइल अप नहीं होंगे, वहां पर रुकेंगे नहीं. All will be moving because of potential difference. They will be continuously in the motion, in the drifting. Therefore, what charges comes per second, that many charges will leave per second. Therefore, sum of the total current approaching is equal to sum of the total current leaving. Simple, very common sense law. पूछा जाता है फर्स्ट, ऑन विच प्रिंसिपल इट इज based on the conservation of charges. Charges कंजर्व रहते, they will not be vanishing. कोई चार्ज डिसअपियर नहीं हो जाएगा सडनली, like your photons disappear हो जाते हैं, they are not conserved. We are going to see in the photoelectric effect chapter. All right, तो जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ये तुम्हें दिया है पार्ट ऑफ द सर्किट जिसमें 1 एम्पियर इसका एंटरिंग एंड 2 एम्पियर इज लीविंग, देन 5 एम्पियर इज लीविंग, 3 एम्पियर इज अप्रोचिंग, 4 इज अप्रोचिंग, करंट आई. तो आई निकालना है ना. तो इसको करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग. कौन कौन से अप्रोच कर रहे हैं इसको समझ लो. एक सिंगल कॉम्प्रेस करके सिंगल पॉइंट पे ला सकते हैं, और यू कैन जस्ट कंसीडर कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे करंट आर एंटरिंग एंड गोइंग आउट. इसको ऐसे कर सकते हैं. देखो, वी कैन थिंक इट लाइक दिस. इसको हमने एक पॉइंट पे ज्वाइन कर लिया, इमेजिन कर लिया कि एक पॉइंट पे अप्रोचिंग वाले कौन से करंट है? 1 है, 3 भी है, 4 भी अप्रोच कर रहा है
इतने को सिस्टम मान लो, दिस इज द सिस्टम, इसके अंदर कितने जा रहे कितने जा रहे हैं उनको सिंपली देख लो। I1 अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 5 इज गोइंग आउट, 3 इज गोइंग आउट, 2 इज गोइंग आउट, ऐड कर दिया। तो I के लिए सॉल्व किया, I इज -1 एम्पियर। माइनस साइन मीन्स करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा एरो होगा। माइनस साइन का मतलब जो है, जो डायरेक्शन दिखाई गई है, इट विल बी अपोजिट, आउटवर्ड, दैट इज आउटवर्ड। इनवर्ड है ना, तो आउटवर्ड लेंगे, दैट इज, कुल मिला के ऐसे लिखो, आउटवर्ड। हमने इनवर्ड से सॉल्व किया है और माइनस आ गया मीन्स इट इज आउटवर्ड बाउंड। सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन दिस, जस्ट बेसिक सिस्टम के अंदर। इवन इफ यू डोंट डू इट लाइक दिस, ऐसे करना है, यही पे सोच लो, इतना सिस्टम में, इसमें जितने अप्रोच है उसको ऐड करते जाओ, 1 3 4, I इज इक्वल टू 5 and 2, 5 + 2, ठीक है। तो नो बिग थिंग हियर, वेरी सिंपल। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आर देयर? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सेकेंड रूल, ओके, one more question I am giving you a first rule, then we will be switching on to the second rule. No problem here? No, sir. चलो देखते हैं आगे क्या है। पहले इसका एक क्वेश्चन ले लो, चेक, लेट मी चेक हाउ मच यू गॉट इन दिस। फर्स्ट रूल के बारे में कितना समझ में आया? ये दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। सॉरी, क्या हो रहा है इसमें? जस्ट मिनट। ये है, दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम based on the first rule. Solve and send it. All right. आई का एरो नहीं दिया है, यू हैव टू एज्यूम वन ऑफ द एरो। इसको आई का एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज यू आर सेलेक्टिंग आउटवर्ड, तो अगर आई पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, और नेगेटिव आ गया तो इनवर्ड होगा। आंसर राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड है? राइटवर्ड ऐसे और लेफ्टवर्ड ऐसे। तो यू हैव टू राइट दिस मेनी ओम्स, दिस मेनी एम्पियर, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। आंसर इज गिवन इन लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है। तो note it, and then we are going to the second rule. All right, now we are going to see the second rule, are also known as the voltage law or loop law. Okay, loop law we बोल सकते हैं इसको। Earlier was for the junction, it is for the closed loop. So it is based on conservation of energy. Energy conservation पर है ये, just keep it in mind, otherwise you are likely to write voltage conservation पर। नहीं, वोल्टेज नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन। वोल्टेज में वर्क डन पर यूनिट चार्ज आता है, तो वर्क डन
Sir, you are not audible. Just a minute. Aditya, please make me host. Aditya Kashti. Okay, thank you. All right. First level done. Yes, sir. Okay, we Yes, are discussing the second rule. Let's see. कोई क्लोज लूप है, सेकेंड लूप के दो तीन नाम है. It is also called voltage law or loop law. Loop law means it is complete one loop. तो किसी सिंगल लूप में if you go around for one loop, complete अपनी जगह वापस आ जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस के सम जो है, sum of the potential difference across resistances and batteries will be equal to 0. कॉमन सेंस से बोल सकते हो ना. देखो, चेंज ऑफ पोटेंशियल वापस आ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा. इफ यू कम टू द सेम पॉइंट, नो पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल लॉजिक. और दूसरा लॉजिक ये है, व्हेन वी गो टू द क्लोज लूप, इट इज कंजर्वेटिव forces are involved. Electric field is conservative field.
फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वापस अपनी जगह आएंगे, वर्क डन विल बी जीरो. तो दैट इज आल्सो लॉजिक गिवन. और कॉमन सेंस लॉजिक इज, इफ यू कम बैक टू द सेम पोटेंशियल, नो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दैट पॉइंट, यू इफ यू कम बैक टू सेम पॉइंट. ठीक है. तो एनसीईआरटी बुक वर्डिंग देखो, algebraic sum of the changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in the loop is zero. राइट, यहाँ पे कुछ होगा देखो, I इंटू R1 और यहाँ पे I इंटू R2, दैट इज सम हो गए दोनों के, I1 R1 प्लस I2 R2. और ये बैटरी का होगा E, सपोज एक और बैटरी लगा देंगे, E1 प्लस E2 will be, all added will be equal to zero. Now all added will be equal to zero means what? Sum of them has to be negative. सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो जीरो कैसे मिलेगा? तो therefore कुछ IR will be positive, some E will be positive, some E will be negative. How to identify them? कौन से I into R will be positive? So let us see sign convention. यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी क्लोज लूप में अगर हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों जा सकते हैं, तो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रेजिस्टेंसेस, अक्रॉस सेल्स, अक्रॉस इवन अक्रॉस कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर नहीं लिखा है बट इट इज वैलिड फॉर कैपेसिटर आल्सो. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस इंक्लूडिंग सेल्स विल बी जीरो इन क्लोज लूप फॉर कंप्लीट मूवमेंट. ठीक है, पूरे लूप में बीच में रुकना नहीं है, पूरा इनिशियल पॉइंट तक आना है. अदर यू गो क्लॉकवाइज और यू गो एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट करो वहां पे आना है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा. ठीक है, फर्स्ट लॉ में हम ऐसे भी बोल सकते हो, गोइंग बैक टू द फर्स्ट लॉ में सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज जीरो, ऐसे बोल सकते हैं, करंट का जंक्शन पर जीरो. अभी इसका क्या मतलब हुआ? करंट अप्रोचिंग हम पॉजिटिव लेते हैं, करंट लीविंग नेगेटिव लेते हैं. सम ऑफ द बुक्स एक्सप्लेन लाइक दिस, किसी जंक्शन पर टोटल करंट इज जीरो, अप्रोचिंग करंट इज पॉजिटिव, लीविंग करंट्स आर नेगेटिव, ऐसा लिखते हैं. तो यहाँ से I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. एनसीईआरटी बुक में कैसा बोला गया? टोटल करंट अप्रोचिंग इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग. Some of the books write some of the currents at junctions are zero. अप्रोचिंग करंट को पॉजिटिव लेना है और लीविंग करंट को नेगेटिव लेना है. ऐसे ही वोल्टेज का भी सम जीरो है यहाँ पर. सिमिलरली सम ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो. सिंपल वर्ड में अगर बोले, जस्ट वन सिंपल वे से अगर वी वांट टू रिमेम्बर है ना, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लूप इज जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? करंट में हो सकता है, बैटरी में हो सकता है, कैपेसिटेंस में हो सकता है. ठीक है, तो साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टेटमेंट समझ में आ गया? साइन कन्वेंशन देखते हैं कैसे है. तो साइन कन्वेंशन अभी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आई आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. तो इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आई आर इज नेगेटिव बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. देखो डायग्राम से देखो, पार्ट ऑफ द सर्किट आई एम टेकिंग. ओके, डायग्राम है मेरे पास, जस्ट आई हैव द डायग्राम. देखो ओके, आई एम मेकिंग फ्रेश. चलो दूसरा बनाते हैं. ये रेजिस्टेंस है और करंट इधर है ना. तो इफ यू हैपन टू ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ यू आर मूविंग लाइक दिस, इफ यू आर मूविंग along the direction of current, है ना, सपोज ऐसे जा रहे हैं, ये इसमें समझ लो ये करंट है यहाँ, तुमने भी क्लॉकवाइज सेलेक्ट किया, यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, है ना. तो करंट भी इधर जा रहा है, तुम भी इधर जा रहे. इफ यू हैपन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू आर गोइंग टू द लोअर पोटेंशियल. तुम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे, करंट की तरफ जाएंगे. यहाँ का पोटेंशियल जो है V1 और ये V2, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो तुम लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए माइनस आई आर.
if we move in the direction of lower potential, यहाँ पे लिख देता हूँ, if we move in direction of decreasing potential, in direction of decreasing potential, then it is negative. Then potential drop is negative. Potential drop, potential difference is negative. तो ये कीवर्ड है, अगर ये ऐसे तो नेगेटिव डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा. Okay, can I have the space here? And vice versa. तो अभी क्या हो रहा है, इधर जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर ही तुम जा रहे हो, तो माइनस है. पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो माइनस आ जाएगा. ठीक है कि नहीं? और इसकी अपोजिट गए तो इफ यू आर मूविंग अपोजिट टू द करंट देन इट विल बी पॉजिटिव. ओके सॉरी, ओके एक मिनट, सेकेंड पॉइंट में अपोजिट आ जाओ. ओके, दिस वाज द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में देखो, इफ यू मूव अगेंस्ट, अगेंस्ट जा रहे हैं तो यू आर गोइंग along the higher potential. जैसे सपोज यू आर स्विमिंग इन द रिवर, you are swimming in against the direction of water current, तो हायर लेवल की तरफ जा रहे, you are approaching to the, going to the high level of the ground. ऐसे इसमें भी करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं तो हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं. करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट, यू आर मूविंग लेफ्ट. देखो ओके, यहाँ पे मैंने हाई एंड लो लिखा हुआ था, ये हाई होगा, ये लो होगा, तभी तो करंट. तो यू आर मूविंग टुवर्ड द लो पोटेंशियल. इसमें भी करंट इधर ही आ रहा है और योर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स, यू आर मूविंग दिस साइड. मूविंग किस तरफ? इधर. अगेंस्ट द करंट मीन्स प्लस IR. IR will be positive, simple. In the direction of current, minus IR. Against the direction of current, plus IR. Clear? इतना तो याद ही रख सकते हैं. अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लस, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो माइनस, बिकॉज यू आर गोइंग टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल. लोअर पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के लिए माइनस, अप्रोचिंग टू द इंक्रीजिंग पोटेंशियल प्लस. Can you remember this much? Do you have any doubt here? अगेंस्ट में प्लस लेना है IR, और इन द डायरेक्शन में नेगेटिव लेना IR को. IR इज द पोटेंशियल डिफरेंस. प्लस होगा कि माइनस होगा, डिपेंड्स अपॉन इन विच डायरेक्शन यू आर डिसाइडेड टू गो. इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, आइदर यू आर गोइंग इन clockwise or you are going in anti-clockwise, that's all. So you will come across the resistance on the way and currents on the way. Arrow will be given to you, resistances will be given to you. You have to just multiply करके प्लस लिखना है या माइनस लिखना है. You decide in that particular branch क्या लिखना है and keep moving forward. Any difficulty so far? जल्दी से बताओ. नो No, sir. No, sir. बट इतना भी याद कर लिया कि अगेंस्ट में गए तो प्लस IR लिखना एंड वाइस वर्सा. You can develop your own technique to remember. तो भाई इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, इनमें आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है.
तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, इन द डायरेक्शन आप करंट जाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और ईएमएफ को देखना है, अभी ईएमएफ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसमें जब हम ईएमएफ को देखेंगे तब करंट नहीं देखेंगे, ओनली व्हाट वी सी कि भाई बैटरी, if you are coming across negative turn, suppose you are moving like this, ऐसे जा रहे थे सर्किट में, है ना, पार्ट ऑफ द सर्किट इज शोन, पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, फिर तुम बैटरी के अंदर चले गए, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल आए, है कि नेगेटिव टर्मिनल से अंदर गए, पॉजिटिव से बाहर, कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, पॉजिटिव से, तो किधर गए, हायर पोटेंशियल की तरफ गए। तो जिस टर्मिनल से बाहर निकले वही साइन रिटेन करेंगे हम। पॉजिटिव से बाहर निकल रहे, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे आ गए, बैटरी के अंदर लोअर पोटेंशियल से घुसे और हायर पोटेंशियल से निकले, तो जिस पोटेंशियल से बाहर निकले वो वही साइन रहेगा, है ना। सपोज हम माइनस से एंटर हुए, प्लस से बाहर निकल गए बैटरी के, वाइल मूविंग इन द लूप, तो हायर पोटेंशियल की तरफ गए। उस समय करंट नहीं देखना हमें, करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, करंट का काम हो गया अभी बैटरी का देखना। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो प्लस, और while moving in the loop you come across the battery in such a way that पहले प्लस आया बाद में माइनस आ रहा है, बैटरी के अंदर घुस गए, फिर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल आए, कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, माइनस से, तो यहाँ माइनस पुट करना, लोअर पोटेंशियल से बाहर निकले। क्लियर। तो while moving in the battery, बाद में जो टर्मिनल तुम्हें मिल रहा है, जिस टर्मिनल से तुम बाहर निकल रहे बैटरी से, दैट साइन विल बी रिटेन। प्लस से बाहर निकल रहा है मतलब हायर पोटेंशियल से तुम निकले बाहर तो प्लस, माइनस से बाहर निकले और तो माइनस रखेंगे एक ही वैल्यू। When we move from negative to positive terminal of battery, then E is positive and vice versa. So you can solve the signs together. ये सिंपल ये लॉ, सेकंड लॉ भी है और साइन भी लिखे हुए हमने। अब इसको अप्लाई करेंगे हम क्लोज लूप में, then we see how it is. क्लियर। तो क्या याद रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो माइनस आई आर एंड वाइस वर्सा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे तो प्लस, नेगेटिव से बाहर निकल रहे तो माइनस। these 4 points you can easily remember. बैटरी का तो इजी है, जिस टर्मिनल से बाहर निकले वही साइन रखना है, ईएमएफ जितने वोल्ट की बैटरी है उसका प्लस रखना है। और इसमें भी हमने जस्ट एक पॉइंट बना लिया, इन मीन्स एन नेगेटिव आ रहा है, एन इसमें भी एन है, और माइनस नेगेटिव में भी माइनस से स्टार्ट होता है। क्यों ऐसा, बिकॉज लोअर पोटेंशियल की तरफ गए तो माइनस, इसमें भी तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से देखो, इधर से चलते चलते आए, पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ा बाद में नेगेटिव, तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो माइनस होता है, ये भी अगर याद कर लिया कि लोअर पोटेंशियल की तरफ गए तो माइनस। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पे नीचे लिख दो स्पेस इज लेस देयर, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी माइनस, चाहे वो बैटरी का हो, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे करंट का हो, और चाहे कैपेसिटर का हो। इफ वी मूव in the direction of decreasing potential, then potential difference will be negative. ठीक है, तो
मैथ्स में वैसे भी इफ समथिंग इज डिक्रीजिंग तो उसका डिफरेंस जो है माइनस आता है, फाइनल वैल्यू कम होती, डिफरेंस में क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी नेगेटिव। ओके, देखो इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक दो पॉइंट और पहले अप्लाई करने से पहले लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट जहां पे तुम्हें कंफ्यूजन होता है। देखो इन वन ब्रांच, यहाँ पे देखो ये नोट्स तुम्हें दे विल हेल्प यू आउट। इन सिंगल ब्रांच, इन वन ब्रांच, वन करंट विल बी देयर, है ना। ये नहीं कि यहाँ से तुम करंट I1 दिखा रहे, आगे चल के I2 दिखा रहे। सिंगल ब्रांच में जितना करंट इंटर होगा इट विल बी रिमेनिंग थ्रू आउट। यहाँ फिर तुम्हें डाउट आएगा सर बैटरी के पीछे तो यहाँ पे हमने करंट I1 लिया, पीछे I2 ले ले क्या? नो, सिंगल ब्रांच में चाहे वो उसके अंदर कितनी भी बैटरी हो, सिंगल ब्रांच सिंगल करंट, वन ब्रांच वन करंट, है ना। जैसे बोलते हैं ना वन वन नेशन वन रूल, सिमिलरली वन ब्रांच वन करंट, है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन एनी लूप वी कैन मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डजंट मैटर, तुम्हारे ऊपर है, तुम इसमें क्लॉकवाइज जा सकते, इसमें देखो इन्होंने इसमें शायद एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, तो यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट्स अप टू यू। ठीक है, साइन ऑफ ईएमएफ डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब हम बैटरी का इसका साइन देखेंगे सपोज, तब हम करंट नहीं देखेंगे इसमें किधर करंट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है। तो ईएमएफ देखने के लिए करंट को भूलना है, करंट किधर जा रहा है डजंट मैटर, एंड यूज फर्स्ट लॉ फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट लॉ लगा लो। कभी कभी ऐसा होता है इफ यू डोंट यूज द फर्स्ट लॉ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द इक्वेशन, तो फर्स्ट लॉ पहले लगा लेंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ लगाएंगे इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस के पॉइंट है, सिंगल ब्रांच सिंगल करंट, you can decide you are want to go to clockwise or anti clockwise, better decide one rule, हमेशा clockwise ही रखेंगे हम, देखते हैं क्या पॉसिबल है। साइन ऑफ ईएमएफ डजंट डिपेंड अपॉन द करंट एंड यूज फर्स्ट लॉ फर्स्ट। फर्स्ट लॉ को पहले यूज कर लो, नहीं तो कभी कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है, तो बी केयरफुल। तो जैसे ये लूप है, एनसीईआरटी बुक का लूप है, दे हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट, हम भी उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट ए पर ले लेते हैं। पॉइंट ए पर फर्स्ट लॉ लगाएंगे यूजिंग किरचॉफ लॉ फॉर द गिवन लूप, यूजिंग फर्स्ट लॉ एट जंक्शन ए। तो करंट अप्रोचिंग कितना है, I3 है, लीविंग कितना है, I1 एंड I2। तो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ पे शायद लिखा है मैंने, ओके लिख देते हैं। चलो, अप्रोचिंग करंट इज I3, it should be equal to sum of the currents leaving, I1 plus I2। Can you see? ये अप्रोच कर रहा है और डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, I1 इधर जा रहा है I2 इधर। लीविंग करंट 2 है तो ऐड कर लिया, अप्रोचिंग करंट 1 है तो ऐड। गॉट इट? फर्स्ट लॉ इज क्लियर, वेरी क्लियर। सेकेंड लॉ, लेट्स सी। देखो सेकेंड लॉ में यहाँ से पहले ये वाला लूप लेते, देखो कौन सा लूप ले रहे हैं, ये वाला। क्या लिखा है मैंने, AHDBA, AH यहाँ पे, D यहाँ पर है और B यहाँ पर है, ऊपर वाला लूप अपर लूप। सिंपल, अगर टाइम कम है तो अपर लूप लिख सकते हैं। क्या एरो बनाया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलो यहाँ से यहाँ तक, नो करंट ड्रॉप। ओके, जस्ट लेट मी शो यू, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखो नो करंट ड्रॉप ए से यहाँ तक, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जाएंगे, अच्छा करंट किधर है, I1 है, तो देखो I1 ऊपर, दे हैव गिवन यू करंट, समटाइम्स यू हैव टू टेक इट, समटाइम्स इट इज गिवन। कौन सा करंट है, I1, ठीक है, सॉरी I1 है, इस सिंगल ब्रांच सिंगल करंट, तो I1 विल रिमेन थ्रू आउट। ठीक है, तो I1 करंट भी इधर जा रहा है, तुम भी इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ, बोलो यहाँ पर प्लस I1 into 30 लिखे कि माइनस I1 into 30 लिखे, माइनस
माइनस I1 इंटू 30। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग करंट, यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पे लो होगा, तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कनेक्टिंग वायर्स है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। बैटरी से अभी हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इंटर हुए, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं। कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर आएंगे अभी यहाँ तक, तो माइनस से इंटर हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस लिखे कि माइनस लिखे? कौन सा बैटरी है? 45 वोल्ट। प्लस की माइनस? प्लस, बिकॉज वी आर कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, तो जिस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं उसका साइन, हाई पोटेंशियल से बाहर निकल रहा है 45। गॉट इट? नाउ आगे आ जाओ, ये एरो देखो यहाँ पे दिया है I3, तो उसको पीछे तक लाना है हमें I3। ये नहीं कि यहाँ पे दिया सर यहाँ पे तो करंट ही नहीं दिख रहा था, अभी मैंने तुम्हें बताया 1 ब्रांच 1 करंट, ठीक है? तो I3 इधर दिया तो यहाँ भी I3 रहेगा, तो I3 इंटू 1, इधर ही जा रहे हैं हम। we have to start from A, go to D and come back to A, तो इधर ही आएंगे, वापस A पर आना है हमें, तो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही दी हुई है, देखो दे हैव गिवन यू, तो माइनस की प्लस, जल्दी बोलो, माइनस I3 इंटू करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इंटू 1, और आगे आ जाओ, ये 40 है, और इसमें भी हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, माइनस I3 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। लास्ट में 0 आएगा, छोड़ना नहीं है सर, नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे देखा जाए तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक साथ ही है ना, 40 प्लस 41 कर सकते थे डायरेक्ट, 40 माइनस 41 इंटू I3, डजंट मैटर, बाद में कैलकुलेशन तो कर लेंगे तुम्हें, I1 I2 के लिए। नाउ लोअर लूप में क्या होगा? इसमें भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा एनसीईआरटी बुक में आई डोंट नो दे हैव डन क्लॉकवाइज, तो विल नहीं सॉरी दे हैव डन एंटी क्लॉकवाइज आई थिंक, बट हमें क्लॉकवाइज ही रखेंगे सभी में। इसमें देखो ए से स्टार्ट करो, बी पर आओ, डी पर आओ, सी पर आओ, और फिर वापस ए पर आ जाओ, ऐसे क्लॉकवाइज ही। लेट मी सी थर्ड लूप में क्या रखा है। क्लॉकवाइज ही है, देखो ट्राई टू राइट योरसेल्फ, अपने आप लिखने की कोशिश करो। चलो विल कंप्लीट दिस एंड देन वाइंड अप, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ओके ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। यस लेट मी कंप्लीट इट। लोअर लूप में शॉर्ट में लिख दूं, लोअर लूप में क्लॉकवाइज जाना है, तो देखो कहां से स्टार्ट करना है? ए से, ओके यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिख देते हैं, ए बी डी एफ ए, ए बी डी एफ ए, तो जो सीक्वेंस में लिखे क्लॉकवाइज सीक्वेंस में जा रहा है, तो क्लॉकवाइज सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ से देखो इधर जाएंगे, करंट तो करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, प्लस I3 इंटू 40, दूसरा करंट भी वही है I3 इंटू 1, और यहाँ से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अभी बाहर आ रहा है। लोअर लूप के लिए सेम बैटरी से निगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, माइनस 45, और इधर से ऐसे आया नीचे। इसमें करंट देखो इन्होंने ये दिया है कितना, I2 दिया हुआ है, तो करंट तो ऊपर आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, है ना? तो अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट में प्लस I2 इंटू 20, और उसके आगे क्या है? लेट अस सी, इधर आ रहे हैं, यहाँ भी करंट तो ऐसे ही आ रहा है, करंट की जो एरो दिखाई है यहाँ पे देखो I2, तो इसमें भी करंट के अगेंस्ट में जा रहा है, प्लस I2 इंटू 1, नीचे वाली ब्रांच में I2 है, क्या है देखे I2 ये है, प्लस I2 इंटू 1, और आगे आएंगे बैटरी की तरफ, प्लस 80 की माइनस 80, बोलो माइनस 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 एटी, ऐसे माइनस ऊपर तक जाना है, तो निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलना,
उस समय बैटरी नहीं देखनी है हमें, -80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन, तीन इक्वेशन हो गई वैसे, फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन हो गई, सेकंड एंड थर्ड, बट समटाइम्स यू may नीड, वैसे 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे, बट लेट अस सी वन मोर इक्वेशन। बिगर लूप, बिगर लूप में सेंट्रल ब्रांच नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। ठीक है, तो बिगर लूप में देखो हम जाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -I1 इंटू 30, और आगे गए नीचे आ गए, इधर करंट इधर आ रहा है, तो +I2 इंटू 20, और फिर इधर आए +I2 इंटू 1, वही सेम रहेगी जो अभी बनाई, -80। तो बिगर लूप की दिखा दूं, बिगर लूप की कहाँ पे, ये वाली हो गई, उसमें भी हम एंटी क्लॉक में दी जाएंगे। एक मिनट इसको हटा दो, लेट्स सी बिग लूप, उसका नाम मैंने नहीं लिखा अभी, कैन यू सी? बिग लूप में सेंट्रल ब्रांच छोड़ देना, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो -I1 इंटू 30 है, फिर आगे यहाँ पे पहुंच गए हम, करंट करंट इधर से आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, तो प्लस, ये तो सेम ही है इसका, इसका जो बनाया था हमने सेकंड वाले का, यहाँ इसके बाद यहाँ से, है ना, +20 इंटू I2, यहाँ पे गए, करंट इधर आ रहा है, +1 इंटू I2, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए ऊपर चले गए, -80। गॉट इट? तो ये देखो, ये एनसीईआरटी बुक का ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। यू कैन सी द इक्वेशन रिटन बिलो द ग्राफ, बिलो द उसमें, बट यू हैव टू सी, इसमें अगर उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो फिर तुम्हें यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, बट हमने सारे क्लॉकवाइज लिए हैं, तो अपने साइन will be different from the book if they are changing it to anti-clockwise. So better you maintain clockwise always, so that mind में confusion नहीं होगा। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, करंट की डायरेक्शन में गए तो -IR, करंट के अगेंस्ट में गए तो +IR, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो +E, जो भी वैल्यू होगी इसकी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो माइनस। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, अभी टाइम नहीं है, जस्ट आई विल वाइंड अप। व्हाट यू कैन डू इज, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, और ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में करने वाले हैं, ये होमवर्क में मैं देने वाला था। देखो, जस्ट यहाँ से सपोज करंट I है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 ऊपर चला गया, I2 इसमें चला गया, तो I विल बी इक्वल टू I1 + I2, एक तो ये हो गया। फिर इसमें देखो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन बेस्ड नहीं है, तो तुम्हें सॉल्विंग में प्रॉब्लम जाएगी, करंट वरंट हम डायरेक्ट ओम्स लॉ से नहीं निकाल सकते, बैलेंस नहीं है। देखो 10/5, तो ये 2 का रेशो, और ये 5, ये 1/2 का रेशो है, इट इज अनबैलेंस। तो हमें करंट या रेजिस्टेंस निकालने हैं, नेट रेजिस्टेंस अगर सर्किट का निकालना है तो हमें व्हाट इज कॉल्ड करंट निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, कैन आई टेक 2 more minutes, जल्दी बोलो, किसी का क्लास है अभी? ओके, तो देखो यहाँ से करंट I1 I2 आ गया, डिवाइड हो गया, फिर ऊपर जाएगा तो अभी बैलेंस तो है नहीं, कुछ करंट नीचे जाएगा, सपोज नीचे करंट I3 चला गया, तो इसमें कितने जाएगा, I1 में से I3 चला गया, तो इसमें कितना बचेगा, I1 वाज अप्रोचिंग, I3 हैज गॉन डाउन, तो माइनस हो जाएगा I3 इसमें से। सिंपल सिंपल। और यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने करंट I2 इधर आ गया, और I3 भी इसमें से आके दोनों सी द लोअर पोटेंशियल, तो दोनों इस तरफ जाएंगे। इसमें इस ब्रांच में क्या हो जाएगा, I2 + I3, ये हो जाएगा I2 + I3, क्योंकि ये I2 आ रहा है इधर से I3 आ रहा, दोनों मिलकर इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर वापस ये देखो, वापस देखो, ये आ जाएंगे यहाँ पर, इधर से I2 + I3 आ रहा है, इधर से
I1 माइनस I3 आ रहा है, I3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, दोनों ऐड होके I1 प्लस I2, वही तो लिया हमने, I जो है यहाँ से I1 प्लस I2 लिया, वापस मिल गया हमें वही। तो अभी जब इक्वेशन बनाएंगे, देखो कौन सी इक्वेशन, पहले ये लूप की बनाएंगे, ये वाले की, इसमें हम क्लॉकवाइज जाएंगे, विल गो क्लॉकवाइज। तो इसमें तो करंट की डायरेक्शन में गया तो माइनस I1 इंटू 10 हो गया, इसमें भी करंट की डायरेक्शन में नीचे आ रहा है, माइनस I3 इंटू 5 हो गया, और इसमें हम इधर आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, करंट के अगेंस्ट में जा रहा है, प्लस I2 इंटू 5 हो जाएगा। बैटरी नहीं है तो छोड़ दो उसको, ठीक है। तो दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकंड इक्वेशन यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे आ जाओ, तो करंट, ये करंट कौन सा है, I1 माइनस I3, करंट की डायरेक्शन में, तो माइनस 5 इंटू I1 माइनस I3। इसमें जब इधर आएंगे तो करंट के अगेंस्ट जा रहे तो प्लस हो जाएगा, I2 प्लस I3 इंटू 10 हो जाएगा प्लस में, और इसमें भी करंट के अगेंस्ट में जा रहे तो I3 प्लस I3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी देख लो यहाँ पे, सही है, जस्ट चेक इट, लेट अस चेक। माइनस है, माइनस 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 है I1, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 5, इसमें करंट के अगेंस्ट में गए, ये दोनों करंट मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस हो गया, इसमें भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये दो इक्वेशन हो गए। थर्ड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, थर्ड इक्वेशन यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर जाओ, फिर इधर आओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर, क्लॉकवाइज ही जाएंगे हम। तो यहाँ से जब, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से जब नीचे की तरफ आएंगे तो बताओ क्या क्या लिखे, बोलो इसके लिए बताओ, ये वाला लूप के लिए लिख रहे हैं हम, नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस क्या लिखेंगे इसमें, माइनस I2 इंटू 5, हाँ ओके। यहाँ पे देखो ये वाला सॉल्विंग इज द मेन प्रॉब्लम, यहाँ पे सॉल्विंग करने के लिए तुम्हें काफी कुछ अब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो माइनस नीचे आ रहा है, देखो माइनस I2 इंटू 5, फिर इधर जा रहे, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे, माइनस दिस इंटू 10, और नीचे आ गए, इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो प्लस 10, और इधर भी जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है, I1 विच इज नथिंग बट I1 प्लस I2, I1 कितना है, I1 प्लस I2 है, ठीक है, यही आ रहा है ना इधर से, तो इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट भी इधर ही आ रहा है, तो इसलिए माइनस 10 इंटू I1 प्लस I2। इसको सिंप्लीफाई, इसको पहले तो छोटा कर लो इक्वेशंस को, नाउ सबट्रैक्ट करो, 1 और 2 को सबट्रैक्ट करो तो आई थिंक क्या चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन I2 I3 में रहेगी, ऐसे 1 और 3 में I1 कैंसिल करा लेंगे, I2 I3 में रहेगी इक्वेशन, फिर I2 I3 में से I2 कैंसिल करा लेंगे। ऐसे इक्वेशन सॉल्विंग इज द बिग हेडेक, इक्वेशन मेकिंग इज नॉट द बिग हेडेक। इसको सॉल्व करके निकालो, उन्होंने बोला सभी ब्रांच में करंट निकालना है, इसमें भी निकाल, ये सभी ब्रांच में मतलब I1 निकालना है, फिर I2 निकालना है, और ये I3 भी निकालना है ना। I3 अगर माइनस आ गया इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, हमने जो एरो दिया है वो रॉन्ग है, एक्चुअल करंट इज गोइंग अप, जो भी माइनस आ गया इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन, ठीक है। और इस ब्रांच में I1 प्लस I2 कर लेना इसको। एक वन ऑफ द आंसर गिवन इज रॉन्ग इन टेक्स्ट बुक, एक आंसर मैच नहीं हो रहा, बाकी सब मैच हो जाएंगे, वो मिस्टेक है उसमें। मेरा सेकंड पार्ट भी है इसमें, देखो सेकंड पार्ट है फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। नेट रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट का नहीं, सर्किट में तो ये भी आ जाएगा नीचे वाला, नेट रेजिस्टेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, डब्ल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज WB, ठीक है। तो आई वाज लिटिल फास्ट, बट बोलो इसमें कुछ, जिनको क्लासेस है अगर समझ में आ गया तो दे कैन लीव इमीडिएटली, बट दोज हु हैव द डाउट कैन स्टे बैक। और यू हैव द प्रॉब्लम तो कल भी पूछ सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम फ्री हियर टू एक्सप्लेन योर डाउट। इक्वेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, वी हैव डन इट करेक्टली, आपको पहले ही लिखी थी तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी।
It was explained to one of the batch. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये माइनस क्यों आ गया? सिंप्लीफाई कर दिया, इसको छोटा कर लिया, प्लस माइनस राइट साइड में तो 0 है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इस पे इधर भेज दिए। ठीक है, दैट यू नो सॉल्विंग द इक्वेशन।